मेहरबान कदरदान साहिबान, मैं हूं आपका होस्ट ईशान। तो आज मैं यूं ही दिन काट रहा था, तभी मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो बना ली जाए। देन आई थॉट बट what about, like, I wanna make a video on YouTube, but what about? Then I searched for YouTube. Then I saw that there were hardly any people who were like making videos about the editorial page of Indian Express. So I thought, why not grab the opportunity? Like there was a meme where a person did really bad at a thing, but still he got third in the competition. Why? Because there was no one else in the race. Okay, I'm not saying that I will do bad, but I mean that the chances of success are way more than regularly. So let's jump in right to the topic. First, the editorial page is the most important page in the newspaper. If you don't have time of reading any other page, then the editorial page is the one that you should go for. Like, I am saying that from the editorial page you can gain the knowledge of everything in the newspaper, but it is the most important page, and if you cannot in any circumstances read the newspaper, this is the page you need to go for. Okay, so our first topic is a political setback for government, a democratic opening for opposition. So let's read what is in it. I will also explain that what they are saying. Okay, in Hindi, the defeat of the Constitution, 131st First Amendment. So the 131st Amendment is to give 33% reservation to the women in Lok Sabha. तो हेडिंग है द डिफीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हार, संविधान की हार, जिसमें 131वां अमेंडमेंट की बात की गई है। 131वें अमेंडमेंट में बोला था कि लोकसभा में वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है। बिल 2026 इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट, और किसी वजह से इस रूल को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये एक शर्मनाक बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। A reminder of the potential of a united opposition, and most importantly, a reprieve for a proper conversation over the constitution. ये एक मौका है ओपोजिशन के, जो अभी रूलिंग पार्टी है, उसके ऊपर सवाल उठाने का और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक डिटेल मीटिंग के अंदर बात करने का। The introduction of the bill had all the hallmarks of the BJP's governing style. जो ये बिल था, जो 131st अमेंडमेंट का बिल था, उसमें जो बीजेपी का स्टाइल था ऑफ गवर्नेंस, वो सब कुछ हाईलाइट हो रहा था। ठीक है। This was yet another attempt to further essence of what this column has described as a permanent revolution. The governing style of permanent revolution is to destroy the power of all countervailing in situations, break all restraints, and concentrate executive power. The manner of introducing this bill signified this. ये जो मैंने अभी पढ़ा, जिस वे में ये रूल लागू किया था, वो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है ग्रेटली।
ठीक है। A far-reaching constitutional amendment which would have deep implications for all constitutional bodies. एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स था। ठीक है, गवर्नमेंट में कई सारे ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं अमेंडमेंट के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये उनमें से एक था। which would have deep implications for all constitutional bodies. ये जो है, ये बिल सिर्फ किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इफेक्ट करेगा। ठीक है। द पावर ऑफ द राज्यसभा, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द delimitation process, the transformation of federalism and the character of the Lok Sabha was introduced in a throwaway manner. It duplicitously linked delimitation and women's reservation. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बिल वुमेन के रिजर्वेशन के ऊपर था। तो फिर बेसिकली जो ये पैराग्राफ है पूरा एक बार पढ़ देता हूँ। The second feature of the permanent revolution is wresting personal ownership and credit for issues on which there is a wider political consensus. हाँ, तो फिर बेसिकली ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है जो मैंने अभी रीड किया, ठीक है, वो ये स्टेट कर रहा था कि इस बिल का मोटिव क्या था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द वन कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ नरेंद्र मोदीज करियर एज प्राइम मिनिस्टर इज दैट ही हैज पॉलिटिकली वेपनाइज्ड द इश्यूज ऑफ जेंडर एंड sought to claim the moral and political high ground on those issues. Basically, he is directly attacking Modi. I'm not saying it's a bad thing, like you should point out someone's issue. तो फिर ये कहना ये सीधा सीधा मोदी की गलती को निकाल रहा है कि कैसे मोदी जेंडर बेस्ड थिंग्स का, महिला पुरुष, इस सब को अपने भाषण में एक हथियार की तरह यूज़ करता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। हाँ, महिलाओं को रिजर्वेशन देनी चाहिए ताकि उनका विकास हो, लोअर कास्ट को रिजर्वेशन देनी चाहिए ताकि उनका विकास हो, लेकिन ऐसे बार बार अपनी स्पीचेस में इसको एक क्या कहते हैं उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये तो ठीक नहीं है। वो मीम नहीं था, एक था, उस वे में बोलता हूँ, महिलाओं को रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, लेकिन इसको अपनी स्पीचेस में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, अब ये तो सही नहीं है। ठीक है। In some areas of welfare and legal reform, these have yielded dividends, but these have also been accompanied by the normalization of misogyny. For those who don't know what misogyny is, basically a misogynist is a person who thinks of a woman as his inferior. Okay? Like think of a person that thinks of a woman nothing but a person who is here to cook and wash dishes, which is totally incorrect. Today girls have played a significant role in the society. Okay? आज लड़कियां डॉक्टर्स हैं, आज वो टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, सभी जॉब्स में लगी हुई हैं लगभग। ठीक है, लगभग से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई जॉब छूटी हुई है जिसमें वो नहीं लगी है। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब कहने का था कि अवेयरनेस कुछ जगहों में अभी तक आई नहीं है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सख्तली काम करना चाहिए। ओके,
by the BJP, but these contradictions don't matter to the permanent revolution. It wants to own every issue and use it as a weapon when needed. बेसिकली वापस ये बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी गलतियां निकाल रहा है कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या गलतियां हैं. ठीक है, ये कहना चाहता है कि बीजेपी जब भी मौका मिलती है तो फिर किसी पॉलिटिकल इशू को अपने एक हथियार की तरह यूज करने लग जाती है. ओके, तो फिर इस पैराग्राफ में हमें बताया कि कैसे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इन जेंडर रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड मुद्दों को या फिर रिलीजन से रिलेटेड मुद्दों को ऐसे वेपन की तरह यूज़ करती है हमारी तरफ. क्योंकि मान लो अगर कोई लड़की ऐसा भाषण सुनेगी कि महिलाएं भी एक जैसी हैं, लोग उनको इज्जत नहीं देते, तो फिर ऑब्वियसली उनके अंदर एक डोबले मीन्स क्रिएट होगा कि हाँ, ये मेरे बारे में बातें कर रहा है, चाहे बाद में वो कुछ करे ना करे. मैं ये नहीं कह रहा कि उस मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन एक डोपामाइन क्रिएट हो जाता है बाद में ऐसा करने से, जिससे ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे. फिर बाद में कभी रिलीजन के बारे में, कभी कास्ट के बारे में, और रिलीजन तो सबसे घटिया है क्योंकि कुछ लोग इतने कट्टर है ना इस रिलीजन नाम की चीज़ को लेकर कि वो लोग मार काट पे आ जाते हैं. तो फिर ऐसी चीज़ें, जबकि संविधान में बोला हुआ है कि वोट कभी भी रिलीजन के नाम पर नहीं लेने चाहिए, लेकिन किसी वजह से उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं लोग. ठीक है. द थर्ड हॉलमार्क ऑफ द परमानेंट रिवॉल्यूशन इज द कॉन्स्टेंट नीड फॉर मोबिलाइजेशन. बाय द वे, आई एम सॉरी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इस वजह से जो न्यूज़पेपर के ग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार से इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ. ओके. In this case, as in so many others, a combination of hubris and unpreparedness led to defeat. ये कहना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में और कई सारी और सिचुएशन की तरह इसमें तैयार ना होने की वजह से एक हार को हमें झेलना पड़ा है. In this case, led to defeat, but we also know in the past for, I'm sorry, wait a second, sorry for the inconvenience. But we also know in the past, for instance, in the moment of demonetization, they can even turn hubris and incompetence into a rallying cry for mobilization. मुझे माफ़ कर दीजिएगा. आई एम रियली सॉरी दैट देयर वॉज अ लॉन्ग ब्रेक ड्यू टू द लो ग्राफिक्स. आई एम सॉरी, दैट वोंट हैपन अगेन. वन ऑफ द challenges for the opposition is going to be to prevent the BJP from doing what it does best, play the aggrieved and hurt party, which casts the opposition as obstructionist. तो फिर यहाँ पे कहा गया कि जो अदर पार्टीज है उनको आवाज़ उठाने से जो रोकेगा ना, वो है जो बीजेपी सबसे अच्छा करती है, वो है रोना धोना. हाँ, चिल्ला चिल्ला के रोना, यही बोला हुआ है कि देखो, हमें हर एक पार्टी क्रिटिसाइज करती है,
ऐसे कहना कि और गलती कर दे तो फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हम गलती कर दे तो फिर हमें हर कोई कहता है। ऐसे प्रिटेंड करती है कि एक्चुअल में जो क्या कहते हैं उसको विक्टिम है वो एक्चुअल में उन्हीं की पार्टी, और बाकी सारे के सारे उनको जैसा स्कूल में नहीं होता है बुली कर रहे हैं, और बाद में जब टीचर आ रही है तो फिर वो बोल रहे हैं कि जो बुली हो रहा था उसी को डांट पड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे ऐसा लगता है दूसरे लोगों को जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतना कुछ देखते नहीं है, न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। By the way, subscribe to me if you don't wanna be like those. Okay? No hate to them, by the way. Okay? वो ऐसा लगता है उनको कि हाँ बीजेपी ही है जो सही है और बाकी सारे के सारे उसको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई ऑपोजिशन बचता नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट। And the final feature of the permanent revolution is institutional price discovery. Keep pushing the boundaries of what we think is possible within the current constitutional framework and see what you can get away with. Next paragraph पे पढ़ते हैं. Aspect of this moment is how much the BJP experiments in Assam and Bengal with delimitation and SIR. So basically in this paragraph we are highlighting कि बंगाल में कितना डिलिमिटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका। बेसिकली जो बीजेपी है, जो बाउंड्रीज हमने क्रिएट किया कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको कितना ज़्यादा मोड़ती है, तोड़ मरोड़ करती है उनके साथ में, इसके बारे में बोला हुआ है। ओके, रिस्पेक्टिवली वर पार्ट ऑफ दिस टेम्पलेट दे हैव क्रिएटेड अ प्रेसिडेंट फॉर how much havoc can be caused to voters through different forms of institutional gerrymandering. In Bengal, it may backfire politically. तो फिर हम देख रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ करने की वजह से बीजेपी जो है, जो ये रूल्स को की बाउंड्रीज जो हमने सेट किया उनको तोड़ने की वजह से कितना बीजेपी को एक तरीके से नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बंगाल में उनको नुकसान भी हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आगे उनको वोट ना भी मिले। बट दीज आर अटेम्प्ट्स टू एक्सपेरिमेंट विद द एक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड बी यूज्ड टू शेप कंट्रोल एंड मैनिपुलेट इलेक्शंस। लेकिन इसका ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है कि इन बाउंड्रीज को तोड़ने से बीजेपी को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो, वो मैनिपुलेट कर सके उनके वोटर्स को, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा वोट्स मिले उनके नुकसान होने के बजाय। ओके, लाइक demonetization, they impose the greatest cost on the poorest of citizens in the name of abstract national interest. इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से, डीमोनेटाइजेशन की तरह मेरा मतलब, वो लोग पोरेस्ट ऑफ द अमाउंट, मतलब कि गरीब से गरीब जिसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा देते हैं। ठीक है, जो कि वो डिज़र्व भी नहीं करते, इस नाम पे कि ये अराजकता फैला रहे हैं। जैसे कि अभी जो करंट में केस चल रहा है, मतलब कि केस ऐसे नहीं, कोर्ट केस, जो अभी सिचुएशन है उसमें गैस सिलेंडर को लेके बात चल रही है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे फैल गया है लोगों में कि there could be a shortage of LPG cylinders, so everyone is buying
induction or is in the line of LPG cylinders, and some people are literally getting arrested for quote unquote spreading misinformation about the shortage of LPG cylinders. Quote. Okay? Like, does that even make any sense? A person is just standing in the line to get his LPG cylinder, but people are considering it as a spread of agenda of misinformation. ओके सॉरी, बीच में थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट हो रही थी, उस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ी, रीस्टार्ट करनी पड़ी, मेरा मतलब पॉज करनी पड़ी। तो फिर बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर्स के लेके लोग अरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि लोगों को पता चले। द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज थिंक दैट देयर कंट्री इज़ पुअर. Okay, like there is a shortage of, not poor, that there is a shortage of LPG gas cylinders. Okay, some people get arrested. Why? Because the government is like, yeah, what are you doing here? Getting in the line, and the person is like going to buy an extra LPG cylinder, but and the officer says, okay, so you are spreading misinformation. Okay, so you were going out to buy LPG cylinders, right? And the person is like, yeah, and the police man is like, okay, now come to the court with me. Okay, this is basically what is happening right now. Okay, so एक और तरीका है जो कि लोग ये जो गैस सिलेंडर की शॉर्टेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, इंडक्शन का चूल्हा बाय करना. ठीक है, अब मैं टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, तो फिर वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं. ओके, The defeat allows a more sober reconsideration of important institutional and constitutional questions. But it has to be said, our constitutional discussion seems to be producing anomaly upon anomaly and not facing up to the international tensions that arise out of the way we think of representation. Okay? For years, political parties have been trying to find pretexts for avoiding implementing their own commitments or reservations. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया कि कैसे कई लोग रिवॉल्यूशन से डरते हैं इस टाइप में, और जो हमारी सरकार है वो कई बार नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि हमारी जो सरकार है वो मोस्टली ट्राई करती है कि कम से कम हमें अमेंडमेंट्स और रिजर्वेशन बनाने पड़े लोगों के लिए. तो फिर ये काइंड ऑफ रेयर अमेंडमेंट थी जो कि बनी है, ज़्यादातर ऐसी बनती नहीं है. ओके, तो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि सरकार को डर है क्या पता लोग प्रोटेस्ट करने लग जाए कि क्यों इन्हीं को रिजर्वेशन मिल रही है और हमें नहीं, हम क्यों रिजर्वेशन में नहीं है, इनको क्यों मिल रही है और हमें क्यों नहीं. जब हर कोई इक्वल है तो फिर इन्हें क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही. ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि कई लोग भावुक हो जाते हैं सुन के. बट इन एक्चुअलिटी रिजर्वेशंस आर एक्चुअली गुड, cause think of poor people, okay, like of lower caste, not including those who are actually rich but below poverty line or at a certain line that has been created by the government. Okay,
Now, a person is trying to crack an exam of something, like let's say of any government job, like teacher, okay, teaching. So he has never gotten a proper education from someone else, because first there was no one else in his family that even read a single word or was just not educated enough. And second, his family was too poor to afford a tutor, so all the knowledge that the person has is by himself, and he's automatically at a disadvantage from the others in the same competition. So now do you feel that reservations are bad or good? See, when we look at things on a broader term, we start to see that things that used to look like they were bad or even rage beating, that brought you rage, when you think of it calmly, you start to understand that it was done for the greater good. Okay, now let's get back to a topic. This may be yet one more attempt to complicate matters, but the constitutional anomaly of trying to produce a semi-proportional outcomes from a first past the post system and the deepening of the rotation of reserved constituencies does put a strain on other principles of representation, including the right of voters not to have their choices restricted by the identity of the candidate. Okay, so in this paragraph, the guy who submitted this idea for the editorial is kind of saying that is bringing a soft spot for BJP. Okay, saying that it is not all that easy to bring amendments or reservations, and even says but is also saying that even after all of this, it is BJP's fault for not bringing many reservations and being scared to bring them just because they might get less votes. So in this one, he is highlighting some good points of BJP and some bad points of it too. Other ways of achieving this objective that would have displayed a more consistent logic. Multi-member districts or party list were summarily thrown out. The anomaly of expecting the principle of caste reservation in our part of the political system while denying it in another. The tension between federal balance and the principle of the equal values of vote are all complex issues. तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई बार एक वर्ड आया है, एनोमली. ठीक है, अब एनोमली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. समथिंग दैट इज अनयूजुअल और समथिंग दैट इज different from normal. Okay, the anomaly of expecting the principle of caste reservation is one part of the political system while denying it in another. The tension between federal balance and the principle of the equal value of vote are all complex issues. बेसिकली जैसे हमने पहले रिजर्वेशन के बारे में बात की,
मैंने कहा कि रिजर्वेशन बुरा नहीं होता, कुछ सोच समझ के ही सरकार लेती है, ये वही बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात ऐड की है कि कैसे वोटिंग सिस्टम को ठीक रखना भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि जो ऐसे होता है मूवीज़ में, मोस्टली मूवीज़ में दिखाते हैं कि पैसे देकर वोट खरीदते हैं। एक हार्श रियलिटी है हमारे इस वर्ल्ड की, हमारे इंडिया की स्पेशली एक हार्श रियलिटी है कि लोग वोट अपना बेच देते हैं। और मूवीज़ में तो दिखाते हैं कि 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं इसके लिए, लेकिन एक्चुअल में 1,000, 2,000 या फिर इवन कुछ खाने के लिए या फिर एक दो दारू के बोतल में ये काम आसानी से कर लेती है सरकार। सोचो, सरकार जिसके पास लाखों का बजट है वो इन पैसों से कितने वोट खरीद सकती है? सोचो ज़रा, कई सारे हज़ारों वोट्स ऐसे ही खरीद सकती है सरकार। अब कुछ जो वेल अवेयर लोग हैं वो अपना वोट कुछ चंद पैसों के लिए बेचेंगे नहीं। चंद पैसे क्या, वो तो अपना जो वोट है वो किसी भी हालत में नहीं बेचेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं who don't know anything, who are illiterate, don't know anything about how valuable their vote is. So our government should bring new policies for education of poor people for free. Okay, so let's get to the next thingy. Okay. Okay, the integrity of the delimitation process need to be protected at all costs. They need to be dealt with by building consensus. बेसिकली जो डिलिमिटेशन है जो कि बीजेपी बंगाल वाले एरिया में कर रही है, वो उसके ऊपर हार्श रूल्स बनाने चाहिए। ऐसा किसी भी सरकार को करना नहीं चाहिए कि जो उसकी लिमिट सेट की है उससे बाहर जाए। ओके, ऑन बैलेंस, गिवन इंडियाज हिस्ट्री एंड sensitivities, the federalism question and the balance of power between the center and the states have to be dealt with through consensus. Okay, but even here 3 things have to be said. First, 3 बातें यहाँ पे भी कहनी पड़ती हैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो कि गवर्नमेंट के ऊपर हैं। फिर से पढ़ता हूँ एक बार। ऑन बैलेंस, गिवन इंडियाज़ हिस्ट्री एंड सेंसिटिविटीज़। बैलेंस में जो ये एक चीज़ देते हैं बीजेपी को जो राइटर हैं कि इंडिया की हिस्ट्री और सेंसिटिविटी को देखते हुए द फेडरलिज्म क्वेश्चन एंड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव टू बी डेल्ट विद थ्रू कॉन्सेंसस। तो फिर बेसिकली जो राइटर है वो कहता है कि सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे देश में और फेडरलिज्म के ऊपर उठाए हुए क्वेश्चंस को देखते हुए हमें, और जो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर लेवल का डिफरेंस है ना, ठीक है, मतलब कि स्टेट कभी भी नेशनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो नेशन है, सेंटर लेवल का मतलब नेशनल लेवल होता है बाय द वे, वो इंटरफेयर कर सकता है स्टेट के बातों में
कुछ उनके अंदर जो कि एक्चुअल में सेंटर को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये वो एक लिस्ट होती है जिसमें दोनों के पावर्स होती है, उससे अलग होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट लिस्ट, एंड इवन इन द स्टेट लिस्ट द यूनियन कैन मेक लॉज which actually sometimes it's good but sometimes it's not, like it's dependent on what the thing is, okay, what the situation is, it depends on it, by the way। तो फिर अब राइटर कुछ बताता है 3 points, but even here 3 things have to be said। First, पहली चीज़, while linguistic imposition must be registered and regional fairness in representation ensured, reducing the debate to regional antagonism risks legitimizing the very ugly politics we ought to resist। तो फिर बेसिकली यहाँ पे बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टिंग बात कहता है हमारा जो राइटर है कि लाइक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बात है कि जो पॉलिटिक्स है हमारे देश में वो बड़ी ही पिछड़ी हुई टाइप में, ठीक है। लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, जो कि एक्चुअल में इतना रॉन्ग है नहीं, क्योंकि एक जॉब लगने के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए लोगों को 5-5 साल वेट करना पड़ता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो तुम एक जॉब लगने के लिए बहुत ही शिद्दत से तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है और तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम बेरोज़गार हो। इसलिए नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए क्योंकि सरकार कुछ भी चला नहीं रही है। सो दैट्स अ थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क in। The cultural tropes of North versus South is dangerous and analytically unfounded। बेसिकली सर जो राइटर है 2 कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करता है कि एक कास्ट और रिलीजन के बारे में लोग मार काट पे आ जाते हैं, लोग कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे फैक्चुअल वीडियोस बनाने लग जाते हैं जो कि नकली होती है कि किस वजह से ये रिलीजन बेटर है, ये कास्ट बेटर है। ये सब कुछ इज रबिश, टोटल गार्बेज। देयर इज नथिंग विद कास्ट एंड द proofs that they gave are, see that in most exams this religion, the people of this religion have a better average than the people of this religion, which is actually very, very wrong, because it is not of their blood or the religion that they are born in. It's actually cause of the environment they live in. It's wrong. It's just wrong. The environment they live in is the real reason why. It is the environment is the real reason why lower caste or other religion than Hinduism are most religion are gaining less marks average in other exams is because they don't have a proper study environment. Their environment is poor, not their capability to learn. Okay, and the second one is north to south. Like, can you imagine a Hindu
from north. Like first we were talking about religion. Let's put that aside. Let's think that they are both of the same religion, but one is from the north and one is from the south. Can you imagine them, like them also saying, no, south is worse, or no, north is worse? That's just bad. But that's just wrong. And you should never do that. Okay? Now, second, at least on constitutional issues, considerations cannot be governed. Considerations cannot be governed by which political party benefits in the short run. बेसिकली ये कहना चाहता है यहाँ पे राइटर कि कंसिडरेशन ये नहीं होनी चाहिए कि इससे पार्टी को क्या लाभ होगा कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, कई पार्टियाँ रूल तभी लागू करते हैं जब उन्हें इसमें अपना फ़ायदा दिखता है कि इससे ज़्यादा वोट आएंगे. ठीक है, मान लो कोई ज़रूरी इशू है, मान लो रिजर्वेशन देनी है किसी को, या फिर मान लो हमें लगता है कि वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है, अब उसको रिजर्वेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी वो रूल हटाएगी नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर उसने वो वोट हटाया तो फिर जो बंदा बिना बात के मज़ा उठा रहा था रिजर्वेशन का, उसको अब रिजर्वेशन मिल नहीं रही, तो फिर अगली बार वो क्यों उस सरकार को वोट देगा? भाई उसको तो रिजर्वेशन चाहिए ना. ठीक है, अब मेरा प्लान तो था कि पूरा का पूरा ये पढ़ूँगा, एडिटोरियल मतलब कि रेस्ट ऑफ द पेज भी पढ़ूँगा, लेकिन वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी जा रही है तो फिर इसी टॉपिक को एंड करते हैं. अगली वीडियोस में देखेंगे बाकियों को. तो फिर वापस से आते हैं. थर्ड, एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, parliaments, functioning and procedures, we need to take a long, hard look at what form a genuine representative process should take. राइटर्स कहता है कि हर एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें हार्ड कंसिडरेशन करनी चाहिए कि क्या जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस की जानी चाहिए, किसके द्वारा कोई किसी और के काम में दखल अंदाजी ना कर पाए. कहावत नहीं है एक, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे. तो फिर जिसका काम है उसी को करने दो, दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करे. जैसे कि लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी नहीं है. The opposition has won an opening, but if it is to continue the momentum on behalf of democracy, it will have to go into constant mobilization and convince citizens that it stands for genuine democratic empowerment and institutional integrity. Discussions of democracy and integrity and institutions must now be rescued from the taint of opportunism and bad faith. The permanent revolution has been thwarted, but democracy is still in peril. So guys, I'm really sorry, but today it is it for today. I can't make this video any longer. I would have loved to make a video on the whole editorial, but I can't now. But I can do one thing, which is read all the titles first.
So let's start. See, these are the main parts of the editorial. Sorry. These are the real main parts of the editorial. These are the this one and these ones are the one that you should read for sure. A message to us, university, rebuild trust. How to send a book out in the world. As we can see from this title, that it is about how we can send a book out in the world. Basically, if you want to make a book, आप एक बुक बनाना चाहते हैं और आपने एक बुक बना भी लिया, तो फिर उसको पब्लिश कैसे करना है. फिर है चाइना इज़ द रियल विनर इन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट. इसमें बताएंगे कि कैसे जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक्चुअल में फ़ायदा चाइना को हो रहा है. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, तो फिर हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे. और व्हेन एनिमल्स बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर, आई एम नॉट रियली like sure what this one means, but I think here they don't really mean animals like जानवर. They mean animals in a metaphorical way for something else. Okay, that is it for today, guys. Please like and subscribe the video if it is good. If you feel that the video was informational, and please share it. It helps me get views and it will motivate me. Thank you. Bye bye.